ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਅਵਾਰਡਸ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਰਵੀਐਸ ਮਣੀ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਚਏ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੈਕਟਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਉਸ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਭਗਵਾ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਮਨਘੜੰਤ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਲਈ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ। ਮਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਆਇਆ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਅਵਾਰਡ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਆ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾਲੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਹਾਰਦਿਕ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਕਗਨੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਅੱਗੋਂ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਮਾਈ ਮਦਰ ਟੰਗ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈਗਾ। तो पंजाबी इज़ नॉट माई मदर टंग, फिर भी मैं जिन्हें अपना यत्न करनागा, नहीं तो हिंदी विच कल हिंदी च। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को मेरा हार्दिक धन्यवाद, बहुत हृदय से, क्योंकि जो मैंने काम किया था तब भी, अब भी और आगे जो करूँगा, जैसे हिंदू टेरर को उन्होंने एक कांग्रेस ने षड्यंत्र बनाया था, ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀਗਾ। ਮਗਰ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਕਰੋ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਟੈਰਰਿਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਜੋ ਵਾਕਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਬਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਇੱਥੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੇ ਸਮਝੌਤਾ ਬਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਣੀਪਤ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੱਕਾ ਮਸਜਿਦ ਮੇਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸਮਝੌਤਾ ਵਿੱਚ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਚੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਗੁੰਡਾ ਸੀ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ISA ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਮਗਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਐਸੀ ਉਸ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਟਰਾਇਲ ਕਾਫੀ ਵੇਖਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਰਾਇਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਮਾਨੰਦ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਮਲ ਚੌਹਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਹੋਰ 2 ਤੋਂ 3 ਐਕਿਊਜ਼ਡ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਭਗਵਾ ਆਤੰਕਵਾਦ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਆਤੰਕਵਾਦ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰਾਚੀ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਭਗਵਾ ਆਤੰਕਵਾਦ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਤੰਕਵਾਦ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਰਿਪਲਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਕੋਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਹਰ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੂ ਇਜ਼ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਲ ਫॉर द अटैक। पाक POK based ISI sponsored outfits are causing these attacks in India, terror attacks। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ, ਕਮਲ ਚੌਹਾਨ ਦੇ, ਅਸੀਮਾਨੰਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਕਾ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਸੀ। ਮੱਕਾ ਮਸਜਿਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼ਰੀਫੁਦੀਨ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਲਾਲ ਨੇ, ਸ਼ਰੀਫੁਦੀਨ ਨੇ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਚੋਂ। ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ। ਕੋਰਟ 2018 ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਲੀਨ ਬਾਇਜ਼ਤ ਪੂਰੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਬ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੱਕਾ ਮਾਲੇਗਾਂਵ ਹੋਇਆ 2008 ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਵਿੰਗ ਕਰਨਲ, ਸਰਵਿੰਗ ਮੇਜਰ, ਇਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਰ ਆਰਮੀ ਅਫਸਰ ਹੈ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ, ਆਰਮੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਾਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਲਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੋਗों ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਕਰਕੇ ਪਿਟਾਈ ਵਟਾਈ ਕਰਕੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਚਲੀਆ। 17 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ 2025 ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਵਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। तो ये सारी चीज़ न्यायपालिका तो वरी है, मेरे कहण से नहीं, तुहाडे कहण से नहीं ना। मैंने हाँ मैं क्या सी सच दे नाल, मैं सच दे नाल उस दिन दी खड़ा सी, अज भी मैं साले ही हूँ।
ਇਹਦਾ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ 17 ਸਾਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੱਟੀ ਹੈ ਬੰਬੇ ਉਹ ਵੀ ਮੁੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਐਨਆਈਏ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ 2025 ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰੀ ਕੀਤਾ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਮੇਰੇ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਕਿਤਾਬ ਮੇਰੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮੇਰਾ ਜੋ ਸਟੈਂਡ ਲਿੱਤਾ ਸੀ ਮੈਂ 2007 8 9 ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ मेरे कहने ते उन्होंने सम्मान नहीं किया उन्होंने कोर्ट के कहने से कोर्ट ने जब पता किया थी तो इसलिए मैं ये बहुत बहुत इस और भी अच्छा हो गया कि ये सरकार निष्पक्ष है साफ सुथरा है ये सारे सिटीजन के लोगों ने नाल खड़ी है और थोड़ा सारा समस्या समाधान यह कर ही सकता है और कोई नहीं कर सकता। सर जो आप जिस हिंदू टेररिज्म की बात कर रहे हैं या जो भगवा टेररिज्म षड्यंत्र किसका था ये क्या चाहते थे मकसद क्या था उनका? देखिए मकसद तो इसका पीछे डीप स्टेट होता है जैसे कांग्रेस की सरकार में काफ़ी कुछ कोशिश किया अभी भी करती हैं तो वो तत्कालीन मकसद था परंतु हिंदू टेरर के ऊपर बड़ा साफ साफ था कि हिंदुओं को अंदर करो तो शायद इस्लामिक टेरर वाले को हमें वोट दे देंगे मगर ये नहीं जानते थे कि टेररिस्ट तो पाकिस्तान से आते हैं जो भी या पाकिस्तान कनेक्शन होता है वो किसी को वोट नहीं होते वो अपने किसी के सगे नहीं है फिर भी उन्होंने प्रयास किया हम खड़े होके लड़े तो अब ईश्वर इच्छा सब बढ़िया हो गया तो ये चीज़ है। आपको भी मजबूर किया गया था कि आप एफिडेविट पे साइन करो? बिल्कुल एफिडेविट पे बदल के पहले एफिडेविट तो क्लियर हो गया दूसरा उन्होंने बदलने की कोशिश की मैं साइन भी किया परंतु एसआईटी के ऊपर जाके मैंने साफ साफ कह दिया कि ये टेररिस्ट है और ऐसे ऐसे इशरत जहां केस में हुआ और उसमें जो विक्टिम थे जो टारगेट थे वो जो टेररिस्ट षड्यंत्र का जो टारगेट थे होम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात उन्हीं को उन्होंने अक्यूज बना दिया सर कोशिश की ये कांग्रेस सरकार ने यूपीए सरकार ने जी 2009 में जो 2013 में मेरा सिगरेट वगैरह जला के बार बार बोलते रहे मैंने माना नहीं खैर जैसे वैसे हो गया अल्टीमेटली वो भी क्लियर करके हो गए मई 2021 में मार्च 2021 को साफ हो गया कि इशरत जहां टेररिस्ट थी आतंकवादी थी जो कम्युनिस्ट कांग्रेस वगैरह उसके सपोर्ट में एम्बुलेंस वगैरह खोल दिया था सब बंद करा दिया मुमरा में और ये हालत थी कि आज नहीं तो 15 साल कोशिश की मगर ऐसा नहीं हुआ और इस संदर्भ में मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ कि ये बहुत बड़ी एक अच्छी बात है इट्स अ वर्चुअस थिंग बहुत ही सराहनीय बात ये है कि मेरे कहने पर हालांकि मैं उनके हित में कह रहा था मेरे किताब उनके हित में थे उन्होंने बिल्कुल अनदेखी कर दी न्यायपालिका का फैसला हुआ न्याय प्रक्रिया का समाप्त होकर जब निर्णय आया उसके बाद जी जो सम्मान आज दिया है आज ही दिया है। आपको किसने फोर्स किया था कि आप सिग्नेचर करें आप ये कहानी गढ़े कि हिंदू टेररिज्म है? एक तो ये तो चलता ही रहता था 2009 से 2013 तक 2013 में तो एक आईजी या सीबीआई ने यहाँ तक बोल दिया कि मैं हमारे डायरेक्टर ने मैडम को बोला प्रॉमिस किया है काली दाढ़ी सफेद दाढ़ी को अंदर करना ये आपको सीबीआई डायरेक्टर ने बोला? नहीं एक आईजी था जो इन्वेस्टिगेशन आईजी ने मैडम कौन थी मुझे नहीं किसको प्रॉमिस किया नहीं पता मुझे नहीं पता काली दाढ़ी और सफेद काली दाढ़ी तो सफेद दाढ़ी तो उसका साफ साफ था कि काली दाढ़ी तब अमित शाह जी थे आदरणीय और तब सफेद दाढ़ी आदरणीय प्रधानमंत्री जी थे यानी नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये दोनों को अंदर डालने की साजिश 2013 में साजिश हुई थी और वो होने नहीं दिया हमने कैसे जैसे कह के मैं मना कर गया बहुत तंग किया उन्होंने। मतलब आज भी हालात अगर बात करें पंजाब की अगर हम हालात करें पंजाब को लगातार डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है जब भी कोई इस तरह के आरोपी पकड़े जाते हैं उनके सीधे लिंक आईएसआई के साथ पाए जाते हैं ये कहा जाता है कि आईएसआई यहाँ पे सीधे तौर पर ऑपरेट कर रही है पूरा का पूरा अपना नेटवर्क आप किस तरह से देखते हैं पंजाब ने भी आतंकवाद की बड़ी मार झेली है पंजाब के आतंकवादी ने भी वही पार्टी ने इसका नींव रची थी जो हिंदू आतंकवाद की नींव रचना चाहती थी कांग्रेस हाँ जमदग्नि तक्षल वगैरह के थ्रू परंतु वो क्या कि 10 साल उस वक्त ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं था वो नहीं था तो कई हैंडीकैप थे ऑफिशियल फंक्शनिंग में और कोई ऐसा ब्यूरोक्रेट खड़ा भी नहीं हुआ
संभवतः, अगर नहीं तो उसी वक्त हो जाती। उसी संदर्भ में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मुझे आज भी आशा है कि जैसे इन्होंने हुर्रियत खत्म किया, जैसे इन्होंने नक्सलिज्म खत्म किया, जैसे नॉर्थ ईस्ट में खुशहाली आई है, पंजाब में भी अगर कोई खुशहाली ला सकता है तो इन दोनों के नेतृत्व में ही आ सकता है। अमित शाह जी को जाके सब पंजाबी लोग रिक्वेस्ट करो, वो अवश्य इसका समाधान निकाल देंगे। और ये जो पाकिस्तान से आ रहे हैं ड्रग्स आ रहा है, या पाकिस्तान से आर्म्स आ रहे हैं, या ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट्स काम कर रहे हैं, इन सब का समाधान वही निकालेंगे या प्रधानमंत्री निकालेंगे। मिर्जा साहब, आप जिस सन का जिक्र कर रहे हैं, एमएचए, आप जो होम मिनिस्ट्री की बात करें, होम मिनिस्टर उस समय चिदम्बरम साहब हुआ करते थे, उनके बारे में कहा जाता है बड़े सुलझे हुए लीडर। सुलझे हुए पार्टी के लिए है ना, पार्टी जो चाहती है उसको वो ठीक तरीके से बढ़िया से अंग्रेजी में या एक्सप्लेन करके बता देंगे। मगर सुलझे हुए लीडर में भी क्या हो सकता है कि जैसे बम्बई अटैक के ऊपर उनका स्टेटमेंट था क्या कि हमारी खुफिया एजेंसियों ने, इंडियन नेवी ने वो शिप को देख लिया था, परंतु क्योंकि आगे खुफिया सोचना नहीं आया उन्होंने छोड़ दिया। उसमें एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह होता है। देखो, कोई भी एडवर्स एलिमेंट को देख लेता है सुरक्षा बल, तो अपना चौकसी बढ़ाती है, सतर्कता बढ़ाती है, कम नहीं करती, खुफिया आए या ना आए। तो बस मगर एक शर्त पर, एक कंडीशन पे वो अबैंडन कर सकते हैं, अगर ऊपर से कोई आदेश आ जाए। ऊपर से कोई आदेश आया होगा, वो आदेश सिर्फ पीएमओ से जा सकता है। अभी 1 महीने पहले एक पीएमओ, उस तत्कालीन पीएमओ में एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट हुआ करते थे, पृथ्वीराज चौहान। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, मैं बिंदुओं को जोड़ रहा हूँ, ये सब मेरे किताब के बाद इनका स्टेटमेंट, बिंदुओं को जोड़े तो पता लगता है कि शायद संभवतः ये भी प्लान था कि उसको आने देना, मुंबई में आके अटैक करने देना, फिर उसको एक भगवा आता। देखिए, वो कलवा पहना हुआ था, अजमल कसवाब नाम उसका, चौधरी था, हरीराबाद का रेजिडेंट, बैंगलोर का स्टूडेंट वगैरह था। ये सब चीज़ ना, तो इसमें वो भी फिक्सड मैच हो सकता है, संभवतः ये फिक्सड मैच भी हो सकता था, उन्होंने ही प्लान किया हो। क्योंकि डेविड एडली को पहले आने नहीं दिया, अभी जो दूसरे को अभी आने दिया, डेविड एडली को आने नहीं दिया। डेविड एडली को पता नहीं इंट्रोगेशन भी नहीं होने दिया, इंटरव्यू करके ले ला के कुछ ला के रिपोर्ट बना के बंद कर दिया, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। तो लेकिन कांग्रेस लीडरों की अगर बात करें, जब उनसे इस तरह के सवाल किए जाते हैं, वो कहते हैं गांधी परिवार ने देश के लिए कुर्बानियां दी हैं। इंदिरा गांधी का कहते हैं कत्ल हुआ, इसके साथ साथ वो कहते हैं राजीव गांधी को उड़ा दिया गया। टेररिज्म तो कहते हैं इन परिवारों ने झेला। ये तो एक्चुअली एक सच्चाई से मुंह मोड़ने वाली बात है। मैं तो टेररिज्म डील किया हूँ। जिस तरीके से मक्खन के हाथ से ये टेररिज्म को डील करते थे और जितनी तरफ साजिश रखते थे दूसरे पार्टियों के साथ, कुछ इधर से उधर, उधर से इधर, कोई कंसिस्टेंट पॉलिसी वगैरह नहीं थी। तो मैं इस मामले में बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। मैं तो एक कदम आगे ले जाऊंगा। कांग्रेसियों में अभी भी काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनको, और बिल्कुल टेररिज्म को क्या क्या झेला है उन्होंने। राजीव गांधी ने वो जो IPKF को बेच के उन्होंने इन्वाइट करवाया, छोड़ देता पड़ोस मुल्क में चल रहा है। इंदिरा गांधी ने दमदमी को यूज करके सिख मिलिटेंट्स फैलाया था, उसी से फिर उन्होंने जाके मार दिया। क्यों मार दिया? गोल्डन टेम्पल में प्रहार करवाया, जो बहुत ही पावन जगह है। और गोल्डन टेम्पल और भी विकल्प थे, पानी बंद कर देते, टॉयलेट सुएज बंद कर देते, गर्मी का मौसम था, बिजली काट देते, 6 दिन बिजली, पानी और सुएज बंद हो जाए तो लोग वहाँ अपने आप दौड़ के बाहर आते। ये विकल्प था या नहीं, आज तक किसी ने सोचा है? यानी गोल्डन टेम्पल पर अटैक जानबूझकर करवाया गया? संभवतः, मैं कुछ नहीं कह रहा, विकल्प और थे, और एक अच्छा मैच्योर डेमोक्रेसी को हो सकता था कि ऐसे कर ले। क्यों किया उन्होंने? क्या मानते हैं इसका कारण? मुझे नहीं पता। आंसर तो कांग्रेस वाले को बढ़ावा देना, बिल्कुल, और प्रोवोक करना उनको। एक तो उनको पता है कि डेडली आतंकवाद मैंने पाला हुआ, वो अंदर बैठा हुआ है, इन्होंने ही पाल के बड़ा करके अंदर बैठा हुआ है, उसको तुम प्रोवोक कर रहे हो, तो नेचुरली गोली लगनी थी उसको।
अब की सरकारों पर भी कई आरोप लगाए जाते हैं। पुलवामा में जो हुआ उसके आरोप लगा दिए जाते हैं। पुलवामा में इसके साथ साथ पहलगांव में जो हाल ही में हुआ उसके लेकर भी आरोप लगा दिए जाते हैं कि क्यों वहां पर जो सुरक्षा थी वो नहीं बढ़ाई गई ये थी। गलत बार बार होता है। पुलवामा के टाइम पे आर्टिकल 2370 अभी चालू था, लागू नहीं, रिमूव नहीं हुआ था। JNK पुलिस से सीधा देखो, जो भी तैनात होती है, जो भी गाड़ियों में जाती है ऑपरेशनल, सारे डिटेल JNK पुलिस में। जो मसूर अजहर के अपॉइंटी अभी सिन्हा साहब ने क्लियर किया, 317 हटने के बाद। उससे पहले तो आधे थे JNK पुलिस में मसूर अजहर के अपॉइंटी थे, तो उन्होंने लीक करके मरवाया। पहलगांव में तो बाई चांस घुस गए थे, अदरवाइज देयर वाज नो चांस। पुलवामा में तो बड़ा साफ साफ है कि वो पाकिस्तानियों का बिल्कुल हैंड था, और इसलिए 370 हटाना जरूरी पड़ा। चलते चलते ये कह सकते हैं कि आपका कहना है कि कांग्रेस ने देश के अंदर आतंकवाद को जन्म दिया। आतंकवाद को सपोर्ट जरूर किया इन्होंने, सपोर्ट जरूर किया। कुछ जगह जैसे मिलिटेंसी आप जानते नहीं थे, पंजाब में साफ इतना प्रॉस्परस एरिया, दुआबा एरिया में कितने इंडस्ट्रीज हुआ करते थे, आज क्या है? ये सब खत्म किया ना 1970s and 80s में। यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕਈ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਸੁਮਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਨੀਤ ਕਪੂਰ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ TV, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।